कनेक्ट कर तुम बोले पण नाही पाणी आलं नाही Hi, good evening, everyone. All right, so yeah, most of the students have joined in. Great. So let me just quickly set this up. All right. So let's take a quick recap of what we had done in the last class, and then we'll maintain continuity and discuss certain new concepts today within stoichiometry. So if you remember last class में मैंने आप लोगों के साथ में stoichiometry start किया था, and in that we did certain basic questions to begin with. Okay, so let me just quickly take you back to our discussion in the last class. All right, so okay, so Aditya, I would request you to stay back after the class, and then let's have a discussion. ठीक है, अभी we'll continue with the session since what we have done in the last class, and because you have joined in today, तो आप मुझे एक बार जब मैं क्लास खत्म करने जाऊंगा उसके पहले रिमाइंड करना. We will talk separately. नहीं, this is Aditya Manoj I'm talking to. ठीक है. Alright, so yeah, as a quick recap, मैंने आपको बोला था कि हम लोग stoichiometry वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एंड इन लास्ट क्लास हम लोगों ने बैलेंस्ड इक्वेशन और उसका इम्पोर्टेंस समझा था, वेरिएबल्स में बैलेंसिंग करना सीखा था, एंड देन आई हैड आस्क्ड यू टू डू द एनालिसिस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, एंड इसमें द प्रेफरेंस वाज टू बी गिवन टू मोल मोल एनालिसिस. Then I did couple of questions based on same, and did a question or two by merging the concept of percentage purity, this one. Then हम लोगों ने वॉल्यूम
एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस किया था, दैट इन केस द गैसेस आर एट कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कंडीशंस, तो गैसियस स्पीशीज के लिए हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस भी कर सकते हैं. And based on that, we did a couple of examples. Actually, we did one example. The next was something which I had asked you as part of your homework. So let me just copy this up and हम लोग इसी को आज की क्लास का कंटिन्यूशन डालेंगे. देन मैंने आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, राइट. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे एंड हो सकता है कि इनमें कुछ आपके डाउट्स भी हो. सो डोंट वरी, what I'm going to do is I'm going to give some more questions today and then उसका combined video explanation I will share with you. ठीक है. So एक बार आप लोग उस video explanation के through जाना and फिर अगर कुछ doubts रहेंगे तो we will discuss on the WhatsApp group as well. ठीक है. So this reminds me, yeah, I have shared the WhatsApp group का link over uh, the official group. Now that WhatsApp group ka link is for the chemistry doubts, so do join in for future discussions related to doubts and it will be good, mutually helpful rahega aap logon ke liye if you can send across each other solutions sometimes to help each other doubts. All right, so yes, continuing from the last class, we had started our discussion with this particular question. Let's start our discussion with this particular question only, जो हम लोगों ने last class में छोड़ा था. इसका रुद्र है ना, बुकलेट सोल्यूशन पार्ट 5 के अंदर ही है, एंड में असाइनमेंट 2 का डिस्कशन है, देखना आप. बुकलेट सोल्यूशन नंबर 5 के एंड में देयर इज द एक्सप्लेनेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है. ऑलराइट, यस. सो लास्ट क्लास में we left at this question. So any takers? What was the answer to this question? Lakshmi, so okay, so for the students who have joined in, what am I going to let me just quickly reiterate the process. See, in the live class, okay, we will discuss theory plus select examples. Okay, then by the end of the class I'll give you homework. ठीक है. ये होमवर्क को आप जब अटेम्प्ट करोगे तो इसके साथ में आई हैव प्रिपेयर्ड वीडियो एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, ऑफ होमवर्क. ठीक है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज बेटर देन जस्ट शेयरिंग द सॉल्यूशंस. ठीक है. देयर आर सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द सॉल्यूशंस आल्सो, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा पेज की, बट उसमें थोड़ा सा मैंने और इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए वीडियो एक्सप्लेनेशंस बनाए हैं. सो द वीडियो एक्सप्लेनेशंस कवर not just the what part of the solution, that this is what the solution is, they also help you cover and understand that how did we arrive at the solution. ठीक है. तो उसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझने के बाद में स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग मेथोडोलॉजी मैंने डाला हुआ है. So once you do that, then most of your doubts should get cleared. ठीक है. But even in that scenario, if something isn't clear or you have some certain specific doubt, so that is where then the WhatsApp group has been created. ठीक है. This is for the ऐसे chem new support doubt discussion करके ऐसे ग्रुप का नाम है. I don't remember the complete name, but there is this WhatsApp group जिस पर then we can have specific discussions also. This is additional discussion. ठीक है. इस पर you can post your doubts
ठीक है, यू कैन पोस्ट योर डाउट्स फ्रॉम बुकलेट्स, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे, या फिर आप कोई और अगर रेफरेंस बुक देख रहे हो, ठीक है, यू आर, अभी तो मैंने रेकमेंड नहीं किया है, बट इफ यू आर सॉल्विंग सम रेफरेंस बुक एंड ऑल, तो आप उसके डाउट्स एंड ऑल भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ वीडियो एक्सप्लेनेशंस मैं आपके होमवर्क देने के बाद में ग्रुप पे ही पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस विल बी पोस्टेड ऑन द ग्रुप ओनली, ठीक है। एंड इसके बाद भी अगर लेट्स से देयर आर सम थिंग्स दैट आर यू नो यू आर स्टिल अनेबल टू रेक्टिफाई और क्लियर, तो फिर हम उसको केस बेसिस पर अलग से डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आदित्य आज ही भेजा है, ठीक है, सो व्हाई डोंट यू पिंग मी सेपरेटली, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप, यू विल फाइंड माय नंबर, जैसे मैंने आज लिंक पोस्ट करा ना केमिस्ट्री लेक्चर का, तो आपको मेरा नंबर मिल ही गया होगा, तो आप मुझे अलग से पोस्ट कर दो, आई विल सेंड यू द व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगेन, ओके। Yes, so yeah, these things, let me now just take them out. Okay, coming back. हाँ, किसी का आया था क्या इस क्वेश्चन का आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इट इज नॉट समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर किसी का आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है इसको। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, वापस से एल्केन के बारे में बात करी जा रही है। सो अब इंस्टेड ऑफ जनरल CXHY, let us take alkane as CnH2n+2, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है ना एल्केन का। ये CXHY तो क्या था, CXHY तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का था, इट कुड बी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब क्योंकि बोला है क्वेश्चन में दैट एल्केन है, ठीक है, सो देन लेट्स यूज दैट इंफॉर्मेशन। अब इसका कंबशन इक्वेशन क्या रहेगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, CnH2n2 गैसियस स्टेट में है, दिस इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन टू गिव यू CO2 गैस, एंड यहाँ पर नोटिस करना H2O वुड बी लिक्विड। ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रहेगा। वाई? बिकॉज वॉल्यूम मेजरमेंट्स आर बीइंग डन एट रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, तो ये H2O को लिक्विड मार्क करना, ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस करके बताना मुझे, हाउ डू वी बैलेंस दिस। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे n कार्बन आइटम्स है, तो यहाँ राइट हैंड साइड पर भी n कार्बन आइटम्स आ जाएंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड पर 2n+2 हाइड्रोजन आइटम्स है, सो इफ आई मल्टीप्लाई हेयर बाय n+1, सो मेरे हाइड्रोजन आइटम्स भी बैलेंस हो जाएंगे। अब बचा ऑक्सीजन, सो लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई हेयर बाय a, then oxygen atoms on both the sides should be same, so 2a should be equal to 2n plus n+1, so I get the value of a, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना 3n+1 upon 2, ठीक है, ये समझ में आया? So this was my balanced equation. This is something similar to what we had done in the last class, ठीक है। I hope this is now something abundantly clear. आपको वेरिएबल्स के टर्म्स में बैलेंसिंग करना आना चाहिए, ठीक है। Now let's see what the information is given to you, that if the volume of reaction mixture reduces by 50% upon completion of reaction, ठीक है, so in the start, ठीक है, the alkane is mixed with just sufficient amount of O2, so मान लेते हैं, ठीक है, this is something which is again a very important problem solving technique,
कि अगर हमें कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है, जैसे मुझे एनालिसिस करना है, मुझे वॉल्यूम का डेटा दिया हुआ है, तो मुझे वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ मानना पड़ेगा और फिर बोलना पड़ेगा कि 50% रिडक्शन हो रहा है। तो जो कुछ मानना है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग स्टेप हो गया मेरे लिए। सो व्हाट आई विल से इज दैट लेट द वॉल्यूम, ठीक है, लेट द वॉल्यूम ऑफ alkane be VML, ठीक है। आई कुड टेक अ वैल्यू ऑल्सो, ठीक है, आई कुड टेक 100 ml, आई कुड टेक 1 लीटर, आई कुड टेक 1 ml ऑल्सो। क्यों? बिकॉज इस क्वेश्चन में कोई हार्ड डेटा नहीं दिया हुआ है, इट इज जस्ट गिवन कि कुछ परसेंटेज में रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू भी ले लेता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई कुड हैव टेकन वॉल्यूम VML और 100 ml, ठीक है, ये भी चलता। वाई? यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज नो हार्ड डेटा, ठीक है। अगर हार्ड डेटा दिया हुआ होता, मान लो ऐसा दिया होता रिएक्शन में दैट अपॉन कंप्लीशन द वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाय 40 ml या द वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाय 400 ml, तो फिर आई कांट टेक a value to start with, then I will have to start with a variable only, ठीक है। सो मेरा प्रेफर्ड चॉइस समटाइम्स वेरिएबल का रहता है, क्योंकि ये कभी गलत नहीं जाता, इससे मुझे डेफिनेटली सही आंसर मिल जाएगा। सो लेट मी देन डू दैट, लेट मी टेक दैट एज वेल यहाँ पर। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में दिस इज VML, ठीक है, and there is no CO2, there is no H2O, ठीक है। This is the start of the reaction. How much of O2 would be required, ठीक है। If you look at their coefficients, ठीक है, if you look at the coefficient, if you do the analysis that CnH2n plus 2 and O2, इनके आप coefficients देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 3n plus 1 upon 2 है। तो अगर इसके VML है तो इसका कितना वॉल्यूम लगेगा, ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 3n plus 1 by 2 into VML, इतना लगेगा, राइट। नाउ एंड ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, ये दोनों तो कंज्यूम हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स पूरे खत्म हो गए, ठीक है, राइट। एंड ऑफ द रिएक्शन में क्या बचेगा, अब प्रोडक्ट बनेंगे। नाउ लुक एट CO2, इसका एनालिसिस कैसा रहेगा, इफ यू लुक एट CnH2n plus 2 and CO2, CnH2n plus 2 का कोफिशिएंट 1 है और CO2 का कोफिशिएंट n है। तो अगर इसका VML है तो इससे कितना CO2 बनेगा, वापस से यूनिटरी मेथड अप्लाई करके आप देख सकते हो। सो यू विल गेट योर आंसर हेयर दैट NVML will be the amount of CO2 that is going to be formed. Now, should I do the analysis for H2O as well? Right, you shouldn't do the analysis because if you remember this is liquid, तो इसका I can neglect negligible volume, ठीक है, this is because of the fact that this is liquid, right। So now as you can see, ठीक है, if you will see how much volume did I have in the start, this is volume before reaction. So if you will add this up, it will come out to V plus 3n plus 1 by 2 into V. And if you add this up after reaction, volume after reaction, your answer will be just n into V. ये समझ में आया? Is this analysis clear? Now look at this data given in the question is that percentage reduction of volume is 50%, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखना वॉल्यूम बिफोर
minus volume after upon volume before. ठीक है, this is how you read the reduction into 100% should be 50%. ठीक है, so when you will simplify this, v plus 3n plus 1 by 2 into v minus nv upon v plus 3n plus 1 by 2 into v is equal to 1 by 2, and the v will cancel out. As you can see, the v cancels out. You will get the value of n to be equal to, you will do the calculations, it comes out to be 3. ठीक है, so that is what gives you the answer that the alkane is C3H8 or propane. ठीक है, तो दिस इज समथिंग जहां पर मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके दिखाया है आपको. ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो. यू कैन सिंपली से दैट 50% रिड्यूस हुआ है, यानी कि दिस आफ्टर रिएक्शन इज हाफ ऑफ व्हाट बिफोर रिएक्शन वाज. तो मुझे इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज मैथ्स, एंड मैथ्स वाले में आई विल लीव इट अप टू यू टू वर्क एंड गेट द फास्टेस्ट वे. ठीक है, एंड वो धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा. अभी मैं कई बार seemingly long process के through जाऊंगा in order to like simplify the things as much as possible. Okay, now ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? हाँ, मैं थोड़ा जूम आउट भी कर देता हूँ, यहाँ पर ऑब्जर्व करना. So this was the volume analysis. ठीक है, so if you remember the steps are pretty much the same. I first try to write the reaction. ठीक है, let me यहाँ पर describe that I try to write the reaction first, then I try to do the analysis. ठीक है, and then this after analysis I do the solving bit. ठीक है, I get the data and data को equations I should write here solving or make equations to solve the unknown. So this is the simple methodology that we work with. अदर वो मेथड यहाँ पर था अनु, इन द सॉल्विंग वाला पार्ट. व्हाट आई जस्ट सेड वाज दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैं सिर्फ ये कर सकता था दैट 50% रिडक्शन है, यानी कि वॉल्यूम आफ्टर इज 50/100 और हाफ ऑफ वॉल्यूम बिफोर. ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं. सो दैट इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग. ठीक है, all right, so good. Now what we are in is a position to analyze what we call as simple reactions. So I have given you amount of reactant, ठीक है, and उससे आपको amount of product निकालना है, या फिर product का amount दे दिया तो उससे आप reactant का amount निकाल लोगे. And if you will notice that once I have done these questions, I am giving you data in such a manner that आपको contradiction face नहीं होगा. आप किसी भी reactant के साथ में analysis कर सकते हो. Now if I take the case जहाँ पर let's say if I give you data of multiple reactants, how will you proceed with it? So let me now call this as a next heading, and this will be called as case of limiting reagent. My god, these guys are so loud. Give me 1 minute. Not going to. All right, so yes, case of limiting reagent. Now before I get into the details of what is the case of limiting reagent, let me try to first kind of
put in front of you a scenario that talks about this situation upfront. ठीक है, so यहाँ पर let me take a simple example to begin with. Say N2 gas is combining with 3H2 gas to give you 2NH3 gas. ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, if I ask you that I give you one molecule of N2 and 3 molecules of H2, how many molecule of ammonia will be formed? ठीक है, so आपका आंसर होगा कि it's a no brainer as we can see from the question, from the coefficient 2 molecules of ammonia will get formed. Great. Okay, so if I give you 2 molecules of N2, ठीक है, and 6 molecule of H2, and then again ask from you that how much ammonia will get formed, तो अभी भी आपका आंसर होगा still 4 molecules, not a problem, it wasn't difficult to ask and understand. Okay, but let me now change the pattern. ठीक है, now let's say I give you 3 molecule of N2 and I give you 3 molecule of H2. How much of ammonia will get formed? How many molecules of ammonia are going to get formed? Right, so some of the students, yes, right, most of the students have given the correct answer, that but अगर let's say मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं, ठीक है, if I do analysis with respect to N2 कि 1 से 2 बन रहा है तो 3 से कितना बनना चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6. ठीक है, बट अगर मैं H2 से एनालिसिस करूं, ठीक है, H2 में आप देखो कि 3 से 2 बनना चाहिए एज पर द कोफिशिएंट, है ना, इफ यू लुक एट द कोफिशिएंट तो 3 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स बनना चाहिए, राइट, सो मेरा आंसर 2 होना चाहिए. ठीक है, तो बिटवीन दीज टू डेटा पॉइंट्स I might get confused that which is correct. ठीक है, now the correct answer is 2 molecules. This will be 6 molecules will be incorrect. ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार काइंड ऑफ विजुअलाइज करके भी देख लेते हैं दैट हो क्या रहा होगा. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना नाइट्रोजन के, ठीक है, लेट मी ट्राई टू हेल्प यू विजुअलाइज दिस. नाइट्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं. ठीक है, अभी नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, हो सकता है ये आपको नहीं आता हो सकता है कि आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हो. एंड हाइड्रोजन के भी 3 ही मॉलिक्यूल है. ठीक है, so what happens as per the reaction that these 3 molecules will combine with 1 nitrogen molecules to give you 2 ammonia molecules. ठीक है, what will happen, what are the key takeaways from this? H2 is completely consumed. ठीक है, this is one important takeaway. ठीक है, the other important takeaway is that N2, or you can say some N2 is left. तो इसका मतलब क्या हो गया, N2 was excess, जरूरत से ज्यादा था. ठीक है, N2 was excess reagent. ठीक है, हम लोग वर्ड डाल देते हैं
रिएजेंट बोल लो या रिएक्टेंट बोल लो, it is kind of same thing. Reagent is more of a fancy lab word. And H2 के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? H2 is called as limiting reagent. ठीक है, LR शॉर्ट में ऐसे हम लोग बोल देते हैं इसको, लिमिटिंग reagent. ठीक है, सो यहां पर लेट मी जस्ट क्विकली रीकैप व्हाट आई हैव डन. ठीक है, जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस का एनालिसिस करते हैं एंड रिएक्टेंट का अमाउंट, ठीक है, रिएक्टेंट का अमाउंट इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो में होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हम लोग किसी भी रिएक्टेंट से एनालिसिस कर लें, हमारा प्रोडक्ट का आंसर सेम ही आएगा. आप N2 के हिसाब से एनालिसिस करोगे तो भी आपका अमोनिया का अमाउंट, एंड H2 के हिसाब से एनालिसिस करोगे तो भी जो अमोनिया का अमाउंट आएगा वो सेम आएगा. ठीक है, when the reactants are present in the ratio of their coefficients. ठीक है, बट अगर जैसे ये आपने इस वाले केस में देखा that the reactants are not present in the ratio of their coefficients. ठीक है, ये 3:3 के रेशियो में हो गया, जबकि कोफिशिएंट ऐसे 1:3 के रेशियो में. तो दिस देन बिकम्स अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, इसमें क्या होगा, then in this case one of the reactants would be excess. ठीक है, जरूरत से ज्यादा होगा, एंड एक रिएक्टेंट होगा जो कि लिमिटिंग होगा. लिमिटिंग मतलब that that reactant will decide how much of product is going to get formed. So यहां पर आपने नोटिस करा इस विजुअलाइजेशन में that N2 जो था वो जरूरत से ज्यादा था, it is excess. It was H2 which is limiting, and based on H2 the analysis of product should be done. So यहाँ पर आप देखना जो analysis है उसमें H2 का analysis correct है. H2 is the one which will give you the right answer, that 2 molecules of ammonia are going to get formed. ठीक है, so इसी चीज को अब मैं एक पैराग्राफ के फॉर्म में या कपल ऑफ बुलेट पॉइंट के फॉर्म में लिख देता हूँ. ठीक है, so let me write it down here itself. The amount, ठीक है, and when I say amount it is primarily moles. ठीक है, मास के टर्म्स में नहीं कह रहा हूं मैं. ठीक है, the amount or moles of reactants that are mixed are not in the ratio of their respective coefficients. ठीक है, this leads to case of limiting reagent. ठीक है, इसे शॉर्ट में हम लोग इसको LR बोला करेंगे. Now what does it mean, इसको थोड़ा सा और elaborate कर देते हैं यहाँ पर. Let me write the spelling correctly.
So यहाँ पर what happens is one of the reactants is in limiting amount and is called limiting reagent. ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं. While the other reactant are called excess reagent. ठीक है, excess reagent या excess reactant. Now what happens is that upon completion of reaction, ठीक है, two important things are going to be there. LR gets consumed completely, and you can say that the amount of product formed is decided by analysis of LR only. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट का प्रोडक्ट फॉर्म होगा. सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल बी यूजफुल व्हाइल डूइंग द एनालिसिस. ठीक है, एंड आई विल also give an example to step by step explain how would we proceed with this. Okay, so let me kind of take an example, and in that example itself I will talk about step by step solving of a case of limiting reagent. Okay, so let me write down this in form of a heading. ठीक है, स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बाद में यू विल बिकम फास्टर, so you need not follow each step, you can just quickly do the analysis. So step by step method for case of limiting reagent. यहाँ पर ऑब्जर्व करना, let me take this an example with an example only. 1 gram of N2 and 3 grams of H2 are mixed to form are mixed to undergo the following reaction. What is the reaction? N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. ठीक है, and I'm asking you to determine the mass of NH3 gas formed. ठीक है, now I hope that you are not giving an answer 2 grams. ठीक है, I hope that is something which is abundantly clear that हम लोग मास में एनालिसिस नहीं करते हैं. ठीक है, so N2 gas plus 3H2 gas is giving 2NH3 gas. तो ये 1 ग्राम्स देखा, ये 3 ग्राम्स देखा, तो किसी महान पुरुष ने यहाँ पे 2 ग्राम लिख दिया हो, ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा. This is absolutely wrong. You have even violated the law of conservation of mass. ठीक है, so definitely this will be a wrong answer. Now, okay, Kunal का doubt है that would the reactions be given in exam? Well, the common ones, yes, Kunal. ठीक है, ठीक है, सुमित आपका आंसर गलत है, and
सम अनकॉमन वंस, इनका रिएक्शन आपको क्लास में मिल जाएगा, ठीक है, इनका सॉरी क्वेश्चन के साथ में मिल जाएगा, ठीक है. All right, so now let me take you through the step by step methodology of solving such questions. So यहाँ पर ऑब्जर्व करना, स्टेप 1 सबसे पहला रहेगा, एंड आप इसी तरीके से फॉलो करना. राइट बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है. स्टेप 2, अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा, खुद से बैलेंस करना पड़ेगा. स्टेप 2 विल बी कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, ठीक है. अगर आपको मास दिया हुआ है तो उससे मोल्स निकालो. सो यहाँ पर जैसे N2 ग्राम्स सॉरी N2 गैस प्लस 3H2 गैस is giving 2 NH3 gas. तो यहाँ पर this is given to you as 1 grams and 3 grams. So this implies this will be 1 by 28 moles and this will be 3 by 2 moles. ठीक है. Now step 3, calculate stoichiometric ratio, ठीक है, and identify if it is a case of limiting reagent. So ये काफी important step रहेगा, ठीक है. यहाँ पे ऑब्जर्व करना, दिस विल बी क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. यहाँ पर व्हाट इज मेंट बाय स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है. सो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो इज मोल अपॉन कोएफिशिएंट, ठीक है. तो हर रिएक्टेंट के लिए आप ये निकालोगे. सो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1, ठीक है. मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 अपॉन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहाँ से, इक्वेशन से, बैलेंस्ड इक्वेशन से, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरीके से आप स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो निकालोगे. नाउ दिस इज व्हाट इज मेंट बाय स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो. इफ any reactant has a different value of stoichiometric ratio, ठीक है. यहां पर ऑब्जर्व करना, if all reactants have same value of stoichiometric ratio, then it is not a case of limiting reagent. Then it is not a case of limiting reagent. But if one of the reactants has a different value, ठीक है. if कोई भी एक, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका अलग अलग हो, बट कोई भी एक का अगर अलग हो गया, if any reactant has different value of stoichiometric ratio, then it is a
केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एंड इसमें आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा, द रिएक्टेंट with least value of stoichiometric ratio will be your limiting reagent. The reactant with the least value of stoichiometric ratio is the limiting reagent. So यहाँ पर आप observe करना, I will follow up on this step. हम लोगों ने ये रिएक्शन लिखा था, ठीक है, इनका मास 1 ग्राम्स था, 3 ग्राम्स था, मोल्स कितने थे 1/28, ठीक है, दिस वाज मास, मोल्स, एंड यहाँ पर 3/2 मोल्स रहेंगे। तो अब यहाँ पे रेशियो ऑब्जर्व करना, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो क्या होगा 1/28/1 एंड 3/2/3, ये इनके कोफिशिएंट्स है, ठीक है, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट अपॉन मोल्स मत करना, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो विल बी मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। तो आपने N2 का निकाला और H2 का निकाला, एंड डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल। If they are not equal, then this implies it is a case of limiting reagent. If it is a case of limiting reagent, then which one is the limiting reagent? The one with the smaller value. तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा that N2 is the limiting reagent. So this is the least value between the two. So this implies N2 is limiting reagent. Now ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है बिकॉज मेनी अ टाइम्स व्हेन यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस, आपको लिख के नहीं आएगा वेदर इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो द एक्सप्लेनेशन गोज इन सिंपल मैनर, step 1 write down the reaction, step 2 write down the moles, and then step 3 calculate the stoichiometric ratio. What is the stoichiometric ratio? Moles upon coefficient, moles upon coefficient. Now if moles upon coefficient does not match for reactants, that means it is a case of limiting reagent, ठीक है, and which will be the limiting reagent? The one with the smallest value of the stoichiometric ratio. So यहाँ पर N2 is the limiting reagent, right? इतना समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है एनालिसिस, अभी हम लोगों ने आधा पार्ट कर लिया है, दैट वी हैव आइडेंटिफाइड द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज योर स्टेप 4, which is also a very important step, that now you will have to perform mole analysis, ठीक है, I would prefer to do mole analysis, ठीक है, गैसेस रहेगा तो उसमें वॉल्यूम एनालिसिस भी कर सकते हो। So perform mole analysis as per the following format and use the learnings of case of limiting reagent, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट रहेगा। दिस इज समथिंग ऑफ अ फॉर्मेट जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 years whenever we are going to do analysis of reactions we are going to follow this format only. This is a robust, very clear and easy to understand format of how a reaction is to be analyzed. Now अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एनालिसिस का फॉर्मेट कैसा रहेगा। So you write down the reaction N2 gas
plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. ठीक है. Now start of the reaction में क्या रहेगा and end of the reaction में क्या होगा. ठीक है. This is what your format is there. Guys, please behave. Shekhar, if you have something to say to me, I would request you to send a private chat. ठीक है. Otherwise, I have no option. Then I will just, okay, I'll change the chat now. I have forced this on my side. Now you can only send replies to me. ठीक है. All right. So as I was talking about the format of analysis, now when we are going to perform mole analysis, तो ये start and end वाला format observe करना, and इस start and end वाले format में हम लोग mole analysis करेंगे. ठीक है. In fact, let me kind of elaborate it. Let me introduce one more step in between. Start, then R/P. ठीक है. R stands for reacted, P stands for produced, and as a result end में क्या रहेगा. ठीक है. reacted, produced. ठीक है. reactant जो होगा वो react हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है. एंड ये हम पूरा यहाँ पर ऑब्जर्व करना मोल एनालिसिस का ही फॉर्मेट करेंगे. सो in the beginning we had 1/28 moles of this, 3/2 moles of hydrogen, and there was no ammonia. ठीक है. तो मैंने उसको डैश से रिप्रेजेंट कर दिया. हाँ. सो आप वॉल्यूम एनालिसिस भी कर सकते हो, बट यहाँ पर क्योंकि डेटा अभी मुझे मास में दिया हुआ है और उससे मैंने मोल्स निकाले हुए हैं, तो मैं मोल एनालिसिस भी कर सकता हूँ. ठीक है. सो स्टार्ट में दिस इज द moles that you have for each species. Now once that is done, अब ऑब्जर्व करना हम लोगों ने ये भी निकाल लिया था that N2 was the limiting reagent. ठीक है. Now look at the learnings from the case of limiting reagent. ठीक है. What were the learnings? यहाँ ऊपर मैं आता हूँ तो यहाँ पर learning क्या क्या था. If you come here, that upon completion of reaction, ठीक है, this is actually the most important one. Upon completion of reaction, limiting reagent gets consumed completely. ठीक है. So I'm coming back here. ठीक है. And I'm going to write here minus 1/28. Why would I write minus 1/28? Because LR gets consumed completely. ठीक है. Now what was the next learning? The next learning was, वापस से मैं ऊपर आपको लेके आ जाता हूँ. The next learning was the amount of product formed is decided by analysis of limiting reagent only. ठीक है. So it is limiting reagent which decides how much of product is going to get formed. So यहाँ पर आप observe करना. If I talk about ammonia, so I would have to do analysis with respect to NH3 only. ठीक है. That look at the coefficient of N2 will be 1 and ammonia will be 2. So if 1/28 moles of ammonia
is getting consumed, then how many moles of ammonia is going to get formed? So when you do the analysis, you will get the answer as plus. Why did I put the plus sign? Because ये product है, ये form होगा, ठीक है? तो यहाँ पर इसके 1/14 मोल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आया है, ठीक है? So the two learnings that I applied here, let me do a quick recap. One learning was that LR gets consumed completely. That is one learning, जिसकी वजह से I was able to write here 1 minus 1/28. And the other learning which I am going to apply here is that analysis of how much product is going to get formed is going to be with respect to limiting reagent only, ठीक है? अच्छा, अगर आपसे वैसे पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आपसे कोई पूछ ले कि यू नो हाउ मच ऑफ H2 is going to be consumed और how much of H2 is going to be left, तो अपन कैसे आंसर करेंगे? यहाँ पर ऑब्जर्व करना, I will do the analysis with respect to N2 only. So यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना N2 एंड H2 के बीच में, ठीक है? N2 का कोफिशिएंट 1 रहेगा, H2 का कोफिशिएंट 3 रहेगा. तो अगर 1/28 मोल्स N2 के कंज्यूम हो रहे हैं, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर गोइंग टू गेट कंज्यूम्ड? सो यू विल फाइंड, एंड आई विल राइट दिस एज 3/28. Why? Minus sign because it is getting consumed. ये समझ में आया आपको? So what will happen now in the end? ठीक है, the limiting reagent got consumed completely, ठीक है? तो end में limiting reagent कुछ बचा ही नहीं, N2 is 0. How much of H2? How much of H2 is remaining? As you can see, starting में 3/2 था और कितना कंज्यूम हो गया? 3/28 कंज्यूम हो गया. So this will be the moles of H2 left, or you can say remaining, ठीक है? And then with respect to ammonia, हम लोगों ने निकाल लिया, स्टार्टिंग में 0 था, स्टार्टिंग में there was nothing of ammonia, and कितना प्रोड्यूस हो गया? 1/14 moles. So in the end you will have 1/14 moles of the reactant present, ठीक है? So ये एक important format है analysis का, which will be time and again used while doing questions, ठीक है? And trust me, जब आप पहला एग्जाम्पल देखोगे और पहला एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करोगे तो काफी दिक्कत आती है. You will have to at least solve some good 5-10 questions on this to understand how to approach this, ठीक है? तो मैं 1-2 एग्जाम्पल्स और अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा. सो ये मेरा स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस हो गया. अब मैं वापस से एक इंटर कन्वर्जन कर सकता हूं, दैट moles of N2 is 1/14, so implies mass of N2, or sorry, not N2, sorry, moles of ammonia formed is 1/14. So as a result, the mass of ammonia formed will be 1/14 into 17 grams. So this is what my correct answer would be. ये समझ में आया आपको? This is what my correct answer would be, ठीक है? आई थिंक सानिध्य का आंसर आया था ये लॉन्ग बैक, एंड ऋग्वेद का भी आया था, नहीं ऋग्वेद का, हाँ ऋग्वेद का और सानिध्य का आंसर आया था. गुड. सो हम लोग इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, एंड आप लोग पहले ना यही स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी फॉलो करना, ठीक है? एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कर लो. फर्स्ट स्टेप, राइट बैलेंस्ड रिएक्शन,
Second step, calculate the moles. Third step, calculate stoichiometric ratio and identify if it is a case of limiting reagent or not. And if it is a case of limiting reagent, then identify which element is the limiting reagent. Then in the fourth step, perform analysis in the prescribed format as per the limiting reagent और with respect to limiting reagent. ठीक है, ये एनालिसिस वाला फॉर्मेट वापस से मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले स्टार्ट पे फोकस करो. ठीक है, स्टार्ट ये तो आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि N2 का कितना अमाउंट है, H2 का कितना अमाउंट है और अमोनिया 0 है. देन reacted produced is where your actual analysis happened, where your mole analysis happened, जहां पर learnings अप्लाई करी हम लोगों ने. ठीक है, हाँ अर्पित, ये स्टेप 3 में मैंने बताया ना आपको, स्टेप 3 में आप आइडेंटिफाई करते हो whether it is a case of limiting reagent or not. How you calculate stoichiometric ratio. Stoichiometric ratio is moles upon coefficient. ठीक है, ये आपका स्टेप 3 का लर्निंग है, दैट यू कैलकुलेट स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो. एंड अगर मोल्स अपॉन कोफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है, तो इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. अगर लेट्स से स्टोइशियोमेट्रिक सेम रेशियो सेम है, ठीक है, इट इज नॉट अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, देन आप कोई से भी रिएक्टेंट के हिसाब से एनालिसिस करो, आपका आंसर सेम ही आएगा. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, अभी इसमें कैसा था, इन केसेस में आप N2 के हिसाब से आंसर दो या H2 के हिसाब से आंसर दो, इट इज गोइंग टू बी सेम ओनली. ठीक है, it is only when the reactants are not present in stoichiometric ratio, then the correct answer comes from limiting reagent. ठीक है, all right, so as I was saying, हाँ ये वाला जो पार्ट है जिसमें reactant and product कितना रिएक्ट होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, इसमें हमें लर्निंग्स लगानी है. लर्निंग्स क्या क्या थी? नंबर 1 लर्निंग वाज लिमिटिंग रिएजेंट गेट्स कंज्यूम कंप्लीटली. सो आपने लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा कंज्यूम कर दिया, यहाँ पे -1/28 लिख दिया. ठीक है, एंड देन कितना रिएक्टेंट्स रिएक्ट होंगे, कितना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, दैट इज एंटायरली डन विद रेस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट. तो यहाँ पर आप नोटिस करना, मैंने जो भी मोल मोल एनालिसिस करा है ये विद रेस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट ही करा है. सो जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कंज्यूम होंगे तो उनके साथ नेगेटिव साइन लगेगा, जो प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे उनके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा. एंड वंस यू आर डन, देन यू कैन कम टू द लास्ट लाइन एंड टॉक अबाउट कि एंड में क्या रहेगा. ठीक है, so apply this on another question. Let me give you that question and let me know the answer for this. So 6 moles of each X and Y are mixed to form or to undergo the reaction X plus Y is giving X3 Y4. ठीक है, now determine, ठीक है 3 पार्ट्स हैं इसमें, determine, और चलो 2 ही पार्ट करते हैं. determine the moles of X3 Y4 formed and percentage of excess reactant reacted. ठीक है, ट्राई करो.
नहीं सुमित, आप स्टेप 1 पे गड़बड़ हो गया ना, बैलेंस कौन करेगा? आप ही को बैलेंस करना है, जरूरी थोड़ा है कि मैं बैलेंस करके दूंगा रिएक्शन। हाँ सानिध्य, आपका आंसर सही है। अनु, आपका आंसर भी सही है। गुड। नहीं उत्सव, थोड़ा गड़बड़ कर दिया। नहीं अलीना, आपका आंसर गड़बड़ है। यश, आपका आंसर सही है। नहीं सुमित, नहीं उत्सव, नहीं मानस। सानिध्य, ये नहीं पूछा कितना बचा है, ये पूछा कितना रिएक्ट हो गया है। हाँ फाइनली सुमित, आपने आंसर सही दिया है। नहीं लक्ष्मी। ऑल राइट, सो एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर बता, चलो इतना बता दो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है बिटवीन एक्स एंड वाई, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? वाई इज द करेक्ट आंसर, एक्स नहीं है ना बाबा। देखो यहाँ पर वापस से आप लोग, सबसे पहले स्टेप 1, बैलेंस द रिएक्शन। सो 3x प्लस 4y is giving x3y4, ठीक है, दिस इज योर स्टेप 1। देन स्टेप 2, डिटरमाइन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन सबका मोल्स दिया हुआ है आपको 6 ईच। स्टेप 3, कैलकुलेट द स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो। स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, ठीक है, नॉट कोफिशिएंट अपॉन मोल्स, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। सो 6/3 and 6/4, of course they are not equal, ठीक है। if they are not equal, that means it's a case of limiting reagent, and इन दोनों में छोटा कौन है? this is the smaller one, 6/4 is a smaller one, तो इससे क्या आ गया? y is the limiting reagent ना, ठीक है। तो ये स्टेप 3 तक आप लोगों ने फॉलो कर लिया। अब इसके बाद में एनालिसिस रहेगा, ठीक है। तो एनालिसिस के लिए मैं वापस से एक बार फ्रेश लिखूंगा, ठीक है। एनालिसिस के लिए आई विल राइट अगेन दैट 3x plus 4y is giving x3y4. Now I have start, this is 6 moles, this is 6 moles, and this is 0, ठीक है। Then I will talk about reacted produced. Reacted produced में कैसा रहेगा? This one was my limiting reagent, ठीक है। So the limiting reagent will get consumed completely, so the answer will be -6, ठीक है, for y. Now how much of x3y4 will be formed? The analysis has to be performed with respect to the limiting reagent. So 4 इसका कोफिशिएंट है एंड 1 x3y4 का कोफिशिएंट है, ठीक है। सो अगर इसके 6 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो x3y4 के कितने बनेंगे? तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा +1.5, ठीक है। अच्छा, x के लिए आप देखोगे कि x का कितना रिएक्ट हो रहा है, तो अगेन द एनालिसिस हैज टू बी डन विद रेस्पेक्ट टू y ओनली, ठीक है। तो कोफिशिएंट देखोगे, x का 3 है और y का 4 है, एंड y के 6 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो x के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे? तो अगेन once you do the analysis you will find that this will be -4.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके you will get that इसके 4.5 मोल्स कंज्यूम होंगे। तो एंड में
x कितना बचेगा 6 minus 4.5 दैट इज 1.5, y तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट है, और x3y4 प्रोडक्ट कितना बन जाएगा 0 प्लस 1.5 दैट इज 1.5 मोल्स। ये समझ में आया? सो मेरे पार्ट ए का आंसर कितना आ गया? पार्ट ए का आंसर दैट इज मोल्स ऑफ x3y4 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 1.5। ये मेरे पार्ट ए का आंसर है। काफी लोगों का, काफी स्टूडेंट्स का ये आंसर आ गया था सही। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोग ऑब्जर्व करना। बोला है परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि ये एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। दिस एक्सेस रिएक्टेंट इज एक्स। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट वाज वाई, सो एक्स इज द एक्सेस रिएक्टेंट। सो परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ एक्स रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ एक्स into 100%, राइट। सो मोल्स रिएक्टेड 4.5 थे, हमने यहाँ ऊपर ही एनालिसिस किया, ये 4.5 मोल्स रिएक्ट हुए थे, और इनिशियल मोल्स वर 6 into 100%। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 75%। सो these were your answers, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये एनालिसिस भी समझ में आए किस तरीके से किया गया है। नहीं सुमित, ये नहीं पूछा ना कितना बच गया है। अगर मैं आपसे ये पूछता कि हाउ मच ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट इज लेफ्ट, तो मेरा आंसर 25% होता। मैंने पूछा है हाउ मच ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट गॉट रिएक्टेड, so that is why my answer is 75%. Is this clear with everyone? हाँ आयुष समझ लो ना कैसा आया ये -4.5 कैसा आया, उसके लिए इस एनालिसिस पे फोकस करो ना। फोकस यार। कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट 3 है ना, x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 4 है। तो ये कोफिशिएंट मैंने यहाँ लिख दिए कि 3 मोल से 4 मोल कंज्यूम होगा। तो अगर y के 6 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो x के कितने कंज्यूम होंगे? तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आया। ठीक है, ऑल राइट। सो स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा ही सही। ठीक है, नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। ये एग्जांपल भी आप लोग यही स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करो, उससे ही आंसर आ जाएगा। सो 1 ग्राम ऑफ कार्बन combines with, or I should say is mixed with, ठीक है, is mixed with 2 grams of sulfur। ठीक है, just as 2 grams of sulfur to give CS2। Now my question to you is determine the mass of CS2 formed and its percentage purity in the final mixture। ट्राई करो।
Don't use calculator or anything. Manually, you can do the calculations and all. It's not a big concern. नहीं अनु, आपका आंसर सही नहीं है. Okay, so नहीं अलीना, आपका भी आंसर सही नहीं लग रहा है. ऋग्वेद का नहीं. हाँ, आंसर फ्रैक्शंस में ही है, मतलब इट इज नॉट अ प्लेजेंट कैलकुलेशन. हाँ, श्रेयस का आंसर सही लग रहा है. मास पूछा है, मास. मोल्स नहीं पूछा समेत, मास पूछा है. हाँ, आई थिंक अभी राइट सुमित, आपका आंसर सही है. नहीं, आप श्रेया लक्ष्मी आप दोनों सेम ही केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो. इट इज 19/8, नॉट 19/16. ऑल राइट, सो ऑब्जर्व करना. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू गेट द आंसर. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, सेम स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी है. कार्बन प्लस सल्फर is giving carbon disulfide. This is the balanced equation. Second step is to calculate the moles. So this will be 1/12 moles and this will be 2/32. Okay, atomic mass of sulfur is 32. Now we calculate the stoichiometric ratio. So moles upon coefficient, moles upon coefficient. Definitely this is not equal, and as you can see, the smaller one is sulfur,
So sulfur comes out to be the limiting reagent. ठीक है, हाँ हो सकता है ऋग्वेद you gave the correct answer, I might have missed it. So you got the third step तक that yes it is a case of limiting reagent and sulfur is the limiting reagent. So अब अपन analysis पे आ जाते हैं. So let me write it fresh. Carbon plus 2 sulfur is giving CS2. Start. You have 1 by 12 moles of carbon and 1 by 16 moles of sulfur. Now we analyze the reacted and produce. So कितना react हो जाएगा? As you can see यहाँ पर limiting reagent पूरा का पूरा consume हो जाएगा. So sulfur, which was my limiting reagent, that got consumed completely. Now how much of CS2 is going to form? So I'll perform the analysis with respect to sulfur. So sulfur का coefficient 2 है and CS2 का coefficient 1 है, right? So 1 by 16 moles अगर consume हो रहे हैं तो कितने moles CS2 के बनेंगे? तो my answer comes as plus 1 by 32 moles. ठीक है, so if you ask me that in the end 1 by 32 moles of CS2 will be formed. So moles of CS2 is equal to 1 upon 32, and if you ask me mass of CS2, it will be 1 by 32 into इसका molecular weight, which is 76 actually. ठीक है, 64 plus 12, 76, and this comes out to be around 2.375 grams. ठीक है, डेसिमल में नहीं भी दोगे चलेगा, मुझे अभी इतना फर्क नहीं पड़ रहा. So that is what the part A का आंसर would be. ठीक है, पार्ट B का आंसर आया किसी का? नहीं सुमित, कुछ तो गड़बड़ किया आपने. नहीं रावी. Let me show the question again. Percentage purity of carbon disulfide in the final mixture. ठीक है, and अभी तक तो किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है. नहीं मानस, that is not the correct answer. नहीं ऋग्वेद. नहीं नहीं श्रेयस, श्रेयश, नहीं, that is not the correct answer. नहीं पूर्णा. ओके, सो आई थिंक आप लोगों को, हाँ केदार ने सही आंसर दिया है. फाइनली गॉट वन आंसर फ्रॉम केदार, राइट केदार, दैट इज करेक्ट. सो ओके, अब मैं बता देता हूँ क्या होगा. एक्चुअली एंड में आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो दैट सल्फर तो पूरा खत्म हो जाएगा बट कार्बन बचेगा ना. देयर विल बी सम कार्बन दैट विल बी लेफ्ट and that is what will form the final mixture. So either you can do the longer analysis, I will give you a shorter method as well, but let me first show you the longer method. So
सल्फर और इसका आप कोफिशिएंट देखो, कार्बन का कोफिशिएंट 1 है, सल्फर का कोफिशिएंट 2 है। तो सल्फर के अगर 1/16 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो कार्बन के कितने कंज्यूम होंगे? तो आप यहाँ से नोटिस करोगे, सो यू विल गेट द आंसर एज -1/32। ठीक है, कार्बन का और सल्फर का कोफिशिएंट देखो और उससे पता पड़ेगा कि अगर सल्फर के 1/16 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो कार्बन के 1/32 मोल्स कंज्यूम होंगे। तो कार्बन कितना बच जाएगा? इनिशियली इट वाज 1/12 एंड इट गॉट कंज्यूम्ड वाज 1/32। ठीक है, so this is what your final mixture will be. Now percentage purity of CS2 in final mixture, ठीक है, it will be mass of CS2 upon the entire mass of CS2 plus mass of carbon that is left into 100%। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, either I can go via the longer method and from the moles calculate the mass of carbon, or I can say that this value should be 3 grams only. Why? Because of law of conservation of mass. ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ में आएगा that when we were doing these calculations, initially there is 1 gram of carbon and there is 2 grams of sulfur. There is 1 gram of carbon and 2 gram of sulfur, तो 3 grams हमने स्टार्ट किया, तो अब थ्रू आउट द रिएक्शन द टोटल मास is going to be 3 grams only. So यहाँ पर you will get the answer as 2.375 upon 3 into 100%, which is around 80%. ठीक है, 79.1% something आएगा. That is what your correct answer would be. Right? इसमें कोई डाउट है? हाँ अनु, आप लेके देखो, आपका आंसर सेम आएगा. Try it, you will get the same answer. Although मैंने क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई करा है. राइट, सो आई थिंक आपको केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट का अब एक फेयर इनफ आइडिया समझ में आया है. अच्छा ठीक है उत्सव, अर्पित, आई विल एक्सप्लेन द परसेंटेज प्योरिटी वाला पार्ट भी अगेन. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना दैट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CS2 इन द फाइनल मिक्सचर. द फाइनल मिक्सचर इज व्हाट? जो CS2 प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, एंड जो कार्बन बच गया है, तो उसमें आपसे परसेंटेज प्योरिटी पूछा जा रहा है. कितना रहेगा? दैट इज द फॉर्मूला कि कितना मास ऑफ CS2 है अपॉन द टोटल मास इनटू 100%. अब द टोटल मास, आइदर यू हैव टू ऑप्शंस, आप कार्बन का भी मास लिखो, कैलकुलेट करो, क्योंकि मोल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं यहाँ पर. दिस इज समथिंग वेयर यू हैव कैलकुलेटेड द मोल्स ऑफ कार्बन. तो यहाँ से आप मोल्स ऑफ कार्बन से मास ऑफ कार्बन निकालो और यहाँ पे डालो, या फिर आई टोल्ड यू अ शॉर्टकट दैट द डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज 3 grams. ठीक है, ये समझ में आया आपको? All right, so now I think you are in a position to attempt some more questions from the booklet. So let this be the last example for today, and I will take some more examples in this in the next class, and then we will
discuss the next variations like series reaction, parallel reaction and all in the next class. अच्छा अब okay अर्पित, you are asking why the carbon is left. आप सोचो ना यहाँ पर ऐसे ये कार्बन लिया था, ठीक है, और ये सल्फर लिया था, ठीक है, एंड अब इनसे आपका CH2 बन रहा था, ठीक है, बट वो कैसे बन रहा था, अब सल्फर पूरा का पूरा रिएक्ट हो गया, ठीक है, सल्फर पूरा खत्म हो गया, लेट मी यूज दिस टू विजुअलाइज, ये सल्फर पूरा खत्म हो गया, बट कार्बन पार्शियली खत्म हुआ क्योंकि कार्बन एक्सेस रिएक्टेंट था। तो अब एंड में क्या क्या बचेगा, एंड में ये थोड़ा कार्बन बचा और CH2 बचा ना, जो प्रोड्यूस हुआ था CH2 वो रहा, और जो बचा हुआ कार्बन था वो रहेगा। समझ में आया? All right, so let me just bring up the homework. हाँ तो बोलो ना अर्पित, आपका डाउट क्या है, और लेट मी यू रेज योर हैंड एंड देन आई विल गिव यू अ चांस टू स्पीक ऑल्सो। एक मिनट देना अर्पित। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन ट्राई। इसमें आप 58 तक कर लो FBO में, and FBS में just give me a second, I will just quickly validate. FBS में okay 53 से 58 ठीक है, and getting good to mains में 1 3 11 13 14 41 okay 1 ठीक है, राइट। सो ये आप होमवर्क कर सकते हो फ्रॉम द बुकलेट। एंड कहाँ गया हमारा अर्पित, राइट। अर्पित आपका मैंने अनम्यूट करा, आपका डाउट बोलो क्या है। सर वो परसेंटेज प्योरिटी के डिनोमिनेटर में हमने मास ऑफ लेफ्ट कार्बन को ऐड क्यों किया? क्योंकि आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CH2 इन द फाइनल मिक्सचर, व्हाट इज द फाइनल मिक्सचर। ये एनालिसिस में देखो ना आप, एंड में क्या हो जाएगा, सल्फर तो पूरा खत्म हो जाएगा, हाँ और कार्बन भी बचेगा, हाँ और CH2 प्रोड्यूस होगा। यस सर। तो दैट इज व्हाट द फाइनल मिक्सचर इज। इसमें मैं पूछ रहा हूं कि CH2 की प्योरिटी कितनी होगी। हाँ तो परसेंटेज प्योरिटी की फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज प्योरिटी, इसको विजुअलाइज करो ना, मैं वही आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये ब्लैक ब्लैक थिंग कार्बन है, ठीक है, एंड ये येलो थिंग सल्फर है, ठीक है। छोटा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है। अब मान लो ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ये कार्बन आया और इस पे सल्फर रिएक्ट कर गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जहां पे जितना सल्फर था वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा और उसकी जगह क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। CH2 यस सर। बट अब ये कैसा है, ये तो पूरा घुला मिला हुआ है, रखा है ना कार्बन के साथ में, पूरा मिक्सचर है ना ये तो। हाँ तो इसमें अब मैं पूछ रहा हूँ कि आपको CH2 कितना है ओके। परसेंटेज प्योरिटी वाइज। तो आप क्या बोलोगे, मास ऑफ CH2 अपॉन मास ऑफ द टोटल मिक्सचर विच इज CH2 प्लस जितना कार्बन बच गया है। तो सर अगर क्वेश्चन में अगर फाइनल मिक्सचर नहीं पूछा होता तो? जस्ट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CH2 पूछा होता तो हाँ मतलब इनकम्प्लीट होता थोड़ा क्वेश्चन। ये तो बताना चाहिए ना कि किसमें परसेंटेज प्योरिटी पूछा जा रहा है। ओके सर। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा तो या कमिंग बैक गाइज, ये होमवर्क आप लोग ट्राई करो एंड आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज सेशन एज वेल एज सेंड यू द होमवर्क।
सॉरी वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ द होमवर्क, ठीक है। एंड मैं अभी भेज दूंगा आप लोगों को रिकॉर्डिंग, आई विल सेंड इट इन सम टाइम। थोड़ा सा इसको बंद करने के बाद में वो प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, सो रात को ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइज, टेक केयर, गुड नाइट।